So my question was, is sadhana easier for sannyasi or a grihast? As per our Sanatan Dharma, Grihastha ashram and all those is part of our sadhana or fulfillment. So unless you fulfill this, you cannot achieve. So I feel you are doing it a part of your overall sadhana. So it's easier to fulfill, easier to understand this concept than another one. Yeah, the second reason was if I look back over all the gurus and sadhus who have forget about recent 300 years, okay, going back, whosoever has contributed to the fundamentals, most of them were married, fulfilling all their requirements. That's what I feel. Very good preparation. Anybody else who selected the opposite want to say something? The sannyasis, it's easier for them to do the sadhana because they have less things to worry about in general. What to wear, starting from what to wear to everything else, less number of people to worry about, children and all that kind of stuff. So, yeah. Good perspective. Anybody else? No comments on sannyasi part because no idea what that would be because हमने कभी किया नहीं. हम तो ये गृहस्था के भी बोलने लायक हैं कि नहीं पता नहीं. क्यों इतना शादी कर ली, बच्चे कर लिए, लायक है कि नहीं पता नहीं. लेकिन it's not like you are not centered like still वहां तक पहुंचने के लिए like आप जो बोल रहे थे कि गुस्सा वगैरह नहीं करना है, वो सब नहीं होता है गुस्सा होता है. You are not still there. और आप ऐसे बोल रहे हो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अभी लायक है कि नहीं पता नहीं. Sadhana is for both yogis and for people who are, and so the way you achieve it, it's like two different hike trails, right? So for us, people who are in the worldly life, we also have to do sadhana, following the path of duty, brahmacharya that we say, right? वो सही है. मेरा क्वेश्चन था, आपको क्या हम्म। लगता है कि कौन सा ज्यादा आसान है, सुविधाजनक है? Asan. सन्यासी के लिए आसान है या गृहस्थ के लिए आसान है साधना? Sadhana, though, for grihast people, definitely it is hard. Monk also have the process, they reach that stage, and similarly for us, it is a different path, and it is difficult for depending on your level of your mind level, right? The sattvic quality that you have in your mind. I did it based on because I'm in the Grihastha Jivan and I don't know, and grass looks greener because I think monk is all the time. But with your classes, if I count 1 minute sadhana, I have done that. So it's not that I can say, and this is my assumption, again, I don't know, monks probably, I don't know, are doing 10 hours of sadhana and I'm doing, let's say, a 1 minute sadhana. So anybody can do it. Good perspective. Anybody else wants to say anything? It's a very good question. Important तो दोनों के लिए है, लेकिन easier I think monk के लिए, वो मेरा perspective है, because हम लोग गृहस्थ जीवन में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें fulfill करनी होती हैं, जिसमें टाइम थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है. एंड देन इवन वो जो दिमाग है उसमें बहुत कुछ चलता रहता है, बच्चा क्या कर रहा है, पति क्या कर रहा है, नौकरी पे ये प्रॉब्लम है. सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. जबकि मॉन्क की लाइफ में तो बस ये है कि उन्हें सिर्फ साधना ही करनी है, नथिंग एल्स. आई थिंक नथिंग. और अगेन उनको घर की मॉर्गेज देने की चिंता नहीं है. उनको जाके आश्रम का खर्चा नहीं होता. मुझे पता नहीं, मैं गई नहीं. नहीं पता ना. ओके, रश्मिका, दिव्या, एनी feedback? I'm just challenging your brain. मैं counter question कर रही हूँ तो not necessarily वो right है या गलत, मैं ऐसे challenge कर रही हूँ brain को. That's I have the same answer because like we are so busy in routine life, have lots of responsibility of ours and the kids and parents. It's even hard for me to find out time to come regularly on the class. It's not easy for the Grihasthashram people. Not easy. Okay. I resonate that too. It's for me personally, it's been a challenge handling family and doing yoga and sadhana and meditation. It is quite challenging. This question what I asked today, it's almost like asking, do you want tea or coffee? It's a personal choice. Both path can be easy or difficult. Doesn't really matter. और जैसा प्रदीप जी ने बोला, हमारे ऋषि सारे मैरिड थे, और ये आइडिया कि सन्यासी बन के ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, ये कहाँ से आया? लेट्स एक्सप्लोर दैट लिटिल बिट डीपर. ज्यादातर ऐसा होता है, आप देखते हैं गृहस्थ जीवन में, कि अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, जैसे आपने भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया या कुछ मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो
most of the family members चाहे तो उनका मजाक उड़ाएंगे या they'll prevent their family members to go into spiritual life. क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं छोड़ के आश्रम नहीं चला जाए. जनरली लोग के मन में ये भावना रहती है. मुझे भी किसी ने बोला था बहुत साल पहले, लेकिन मैं अभी भी यहीं पे हूँ. समझना पड़ेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया, क्योंकि ऋषि तो सारे मैरिड होते थे. हमारे यहाँ बाल ब्रह्मचारी का परसेंटेज बहुत कम होता था और वो सोसाइटी में एनकरेज भी नहीं किया जाता था. और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु वांटेड टू मेक श्योर कि आपके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तभी वो आपको दीक्षा देते थे. और बहुत रेयर फ्यू होते थे जो बाल ब्रह्मचारी होते थे, जैसे शंकराचार्य हुए थे. कहाँ से शुरू हुआ ये? ओवर द लास्ट, जैसे प्रदीप जी ने बोला 300-400 या मे बी और थोड़ा पीछे जाएंगे, जब से कंफ्यूज प्रिंस सिद्धार्थ ने घर छोड़ के गए तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया. हु वाज कंफ्यूज प्रिंस सिद्धार्थ? एनीबॉडी? ही वाज नॉट बुद्धा व्हेन ही लेफ्ट होम. ही वाज अ कंफ्यूज्ड राजकुमार, इजंट इट? तो ये जन सामान्य के बीच ये अवधारणा आ गई, मतलब ये विचार आ गया कि इस रास्ते पे जाने के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ता है. ऐसा नहीं है. ओके ये हमारे ऋषियों ने ओवर द इयर्स, आई मीन जनरेशंस बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है. That's what I told you. It's almost question like, do you want tea or coffee? It's your preference. Lifestyle can be your preference, and sadhana can be कठिन for both गृहस्थ and सन्यासी. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सन्यासी, आई एम टेलिंग यू. वो आश्रम में कल का खाना कहाँ से आएगा, बिजली बिल कहाँ से पे होगा, आश्रम में जगह भी नहीं होता सोने का, जमीन पे सोना पड़ेगा, सांप बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं. देयर इज नो कंफर्ट इन आश्रम. प्लस ये तो एक कंफर्ट की बात हो गई, दूसरी वासनाओं की बात हो गई. जैसे गृहस्थ जीवन में हमारे अंदर वासना आता है, जैसे क्रोध आया, प्रेम आया, या कुछ एडिक्शन आया, हम फट से चाय कॉफी कुछ पी लेते हैं. हमारे पास एक रिजॉल्व करने का तरीका होता है विच इज नॉट कंसिडर्ड रॉन्ग. और सन्यासी ही अगर कुछ ऐसा करेगा तो उसका पेपर में न्यूज आ जाएगा. उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है. वो ऑलमोस्ट ऐसे चलते हैं जैसे एक तलवार की धार पे चल रहे हैं. उनको इतना संयम रखना पड़ता है, एंड इट्स नॉट ईजी टू एग्जॉस्ट द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड. तो इसीलिए हमारे ऋषि ने ये गृहस्थ जीवन का आश्रम बनाया कि इसमें रहते हुए यू हैव टू कंटिन्यू स्पिरिचुअल साधना. और ये बहुत बड़ा, आई वुड से, कैंसर है सोसाइटी का, स्पेशली अपने भारतीय समाज का, ऐसा सोचना कि गृहस्थ जीवन इज नॉट फिट फॉर साधना. ये बहुत बड़ा कैंसर है. मैं किसी को बोल रही थी, किसी का ग्रैंड चाइल्ड था, 4 साल का हुआ, तो मैंने बोला इसको अभी से थोड़ा श्लोक और भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दो. तो उनका आंसर यही था, अभी से ये सब पढ़ेगा तो रेगुलर पढ़ाई कहाँ करेगा और क्या कमाएगा और क्या खाएगा. दैट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग. बट ऐसा नहीं था पहले, और ये बुद्धा के इस एग्जाम्पल से आया है. वो सन्यास को या स्पिरिचुअल जर्नी को, सन्यास तो मन में होता है ना, नहीं तो कितने सारे साधु या जो सन्यासीज रहते हैं उनके मन से सन्यास तो होता नहीं है. मन में वही वासना चलती रहती है. वी डोंट नो, वो भले ही ऑरेंज कपड़ा पहने हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वासना चल रही है, उनको नहीं पता. दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग एज वी आर स्ट्रगलिंग. दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. बहुत सुंदर स्टोरी है. इसको मैं इस वीडियो के क्लिप के बाद भी डाल दूंगी. वो वीडियो है इसका बृहद आरण्य के उपनिषद का. ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी वाइफ मैत्री के बीच का वार्तालाप है, मतलब डायलॉग है. बृहद आरण्य उपनिषद यजुर्वेद का पार्ट है. जैसे मैंने समझाया था, उपनिषद इज द ज्ञान कांड ऑफ द वेदास, है ना. वेदों में से ही निकाला गया एक्सर्ट जो ज्ञान कांड है, और वो यही आत्मज्ञान, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. तो उसमें ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्री. ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ ऋषि बोल सकते हैं. उनका आश्रम था और वो सारे शास्त्रार्थ में सबसे जीते थे. सो अगर आजकल के ज़माने में बोला जाए तो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल करियर वाइज. उनका करियर एकदम चरम सीमा पे था. उनने सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया था. उनका नॉलेज इतना डीप था आत्मज्ञान का. पहले तो शास्त्रार्थ और डिबेट्स होते रहते थे सारे. उसके बाद वो आते हैं अपने घर में, बोलते हैं, दोनों पत्नियों को मैसेज भेजते हैं कि मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ गृहस्थ आश्रम से. मैं वानप्रस्थ के लिए जा रहा हूँ, जो कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता था उस जमाने में. मे बी ही टुक अ लिटिल बिट अर्लियर. तो उनकी जो दूसरी वाइफ थी, उनको बहुत डर लग जाता है, कात्यायनी, बिकॉज कात्यायनी वाज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन विद लॉट ऑफ डिजायर्स एंड गृहस्थ जीवन में ये करना है, वो करना है, सुंदर दिखना है, घर सुंदर रखना है. शी वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म. तो उसको तो बहुत डर लग जाता है, और वो उनको समझाने का ट्राई करती है कि नहीं, यू आर नॉट दैट ओल्ड राइट नाउ, आपको ये ज्ञान बूढ़ा बना रहा है. तो बोलते हैं नहीं, मैंने जो अचीव करना था कर लिया. आई थिंक एक स्टेज आती है जब मुझे लगता है मैंने सब कर लिया. आई वांट टू लीव नाउ. और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास गोधन है और जो भी मेरे पास पैसे हैं, स्वर्ण है, दोनों में आधा आधा डिवाइड कर दूं, ताकि तुम लोग अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर सको मेरे बाद जाने के बाद भी. सो दैट ही वांटेड टू मेक श्योर दे आर टेकन वेल केयर ऑफ. तो आई विल मेक अ डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी. अब मैत्री जो थी उनकी पत्नी, शी इज डिपिक्टेड एज अ वेरी वाइज एंड फिलोसॉफिकल वुमन, जो उनके साथ बैठ के डिबेट्स करती थी. उसको बहुत इंटरेस्ट था ये सब गेम में, और डीप डिस्कशंस होते थे हस्बैंड वाइफ के बीच. दे वर सच गुड फ्रेंड्स इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. एंड वो ये जानना चाहती थी व्हाट इज ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ, द नेचर ऑफ रियलिटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ. ये सब बहुत डीप डिस्कशंस होते रहते थे उनके. फिर वो डिस्कशन करने के लिए बैठती है तो
वो पूछती है, बोलती है याज्ञवल्क्य से, अपने पति से, कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज हमारे पास होती है उसको छोड़ते नहीं है जब तक उससे कुछ अच्छी चीज हमको नहीं मिल जाए। दैट्स ह्यूमन नेचर, इजंट इट? जैसे एक बच्चे के पास भी एक टॉय होता है, वो जब तक उसे बोर नहीं हो जाए, उससे बढ़िया टॉय उसको नहीं मिल जाए, तब तक वो छोड़ता नहीं है उसको। तो ऐसा क्या है जिसको आप ये मटेरियल पोजेशन सारा छोड़ के जा रहे हैं? आपको क्या ऐसा अच्छा मिल गया? आई वॉन्ट टू नो दैट। और वो पूछती है कि आप जो ये हमारे लिए मटेरियल कंफर्ट सब धन और गोधन सब छोड़ के जा रहे हैं, कैन इट मेक मी इटर्नली हैप्पी? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मैत्री टू याज्ञवल्क्य। इसमें पूरा बृहदारण्यक उपनिषद का पूरा वो बुक लिखी गई। तो वो बोलते हैं उसको, मैं एक छोटे संक्षिप्त में बताती हूँ, शॉर्ट में। नो, यू कैन नॉट बी हैप्पी बट यू कैन बी जस्ट कंफर्टेबल विद ऑल दिस material pleasures। तो वो बोलती है कि what will make me perpetually happy, always happy and content, so teach me that। तो उसमें फिर उनका डायलॉग होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ऋषि majority they were married and they carried on their sadhana in the married life. It was not a distraction for them or it was not a impediment for them, obstacle नहीं था बिल्कुल भी। तो जैसे मैंने बोला, ये बहुत बड़ा कैंसर हो गया है इंडियन सोसाइटी में। पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर ऐसा सोचना कि गृहस्थ जीवन में एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करना है और इस टाइप में अलग से बिहेव करना है स्पिरिचुअल साधना के मामले में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आइडिया ही छोड़ देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि समय कहाँ से निकालें? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने बोला है कर्म योग की साधना, जो हम अगले हफ्ते स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इन पर्सन सेशन में। कर्म योग इज द बेसिक साधना दैट इज गिवन टू गृहस्थ सो दैट यू कैन टर्न एवरी एक्शन ऑफ योर्स इनटू अ साधना। ओके, दैट इज एन आर्ट टू बी लर्नड एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल साधना। दैट इज द ग्रॉसेस्ट लेवल। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो अपने हाथ से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, सबको साधना कैसे बनाना है वो कर्म योग में है। वो चैप्टर 3 ऑफ भगवद गीता में है, उसकी हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो यही मेरा था कि नेवर हैव दिस फीलिंग ऑफ लिमिटेशन बीइंग इन द गृहस्थ जीवन। और ये सब आश्रम में भागने वाला कॉन्सेप्ट सारा बुद्धिज्म से ही आया है, जहाँ पे मॉन्कहुड करते हैं सभी। कि हमारे ऋषियों ने एकदम क्लियर बोला था, इट डजंट मैटर, आउटर अपीयरेंस डजंट मैटर, अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि संन्यास कहाँ से होता है? मन से होता है। तो शुरू में साधना में ना सन्यासियों को या गृहस्थ को भी त्याग करना पड़ सकता है। त्याग और वैराग्य में यही फर्क होता है। त्याग मतलब होता है you're leaving something behind. For example, you may be leaving your late night movies or parties. That's त्याग। वैराग्य मतलब होता है इंटरेस्ट ही चला गया है। तो त्याग इनिशियल स्टेज होता है। बाद में जब आपकी साधना थोड़ी मैच्योर होने लगती है तो आपको नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है टू गो अवे फ्रॉम थिंग्स दैट इज नॉट एडिंग योर साधना एंड गोइंग टुवर्ड्स थिंग्स दैट इज हेल्पिंग योर साधना। एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। तो ये गलत धारणा है बिल्कुल भी कि बिकॉज आई एम अ गृहस्थ, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड्स और माई पेरेंट्स और डू गो फॉर अ जॉब फॉर 8 hours, आई कैन नॉट ग्रो इन माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। क्योंकि देन यू आर पुटिंग अ ब्लेम गेम ऑफ योर माइंड ऑन टू अदर्स। Whereas all our ऋषि says we have to look within। एक कथा उपनिषद में बड़ा अच्छा टर्म आता है, आवृत चक्षु। चक्षु मतलब आइज, आवृत मतलब सर्कल बैक। When you start circling back on yourself, what is my priority and how my actions should be aligned with my sadhana, that term is called आवृत चक्षु। और ये एग्जाम्पल देके गंगा नदी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, गंगा जी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गंगा जी जहाँ जहाँ हिमालय की तरफ मुड़ती हैं वहाँ वहाँ तीर्थ स्थल हैं भारत में, जैसे ऋषिकेश, वाराणसी, काशी, जहाँ जहाँ थोड़ा ऐसा एज दो गंगा जी इज ट्राइंग टू गो बैक टू हिमालयाज सोर्स और सेइंग थैंक यू टू हिमालयाज। सिंबॉलिक है, बट वहाँ वहाँ इंडिया में तीर्थ स्थल बन गया है। हम भी जब अपना आवृत चक्षु करते हैं, अपने तरफ मोड़ते हैं ध्यान अपना, तो हमारा मन ही तीर्थ स्थल बन जाता है। यहाँ बैठे बैठे गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं। यही अमृत है। मृत मतलब क्या होता है? डेली आप मरते हैं, डेली जीते हैं ना। जैसे काम हो गया, किसी ने परेशान कर दिया, हर समय आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, गो फ्रॉम वन टास्क टू अदर। वो क्या है? मरना ही तो एक तरह से ना। You're trying to get by the task of your life, get things done, end of the day I am done। वो फीलिंग ही नहीं आती है साधना में, क्योंकि आप कर्म योगी हो। And we'll explore this further, how to inculcate that sadhana। Raja was saying it's brilliant. Yeah, this knowledge is brilliant and I'll share that video। this सत्संग के अभी लास्ट में आप वीडियो देखेंगे, मैं अटैच करूंगी यूट्यूब वीडियो से। It's brilliant the way it's explained in our Upanishad and the way Yajnavalkya talks to Maitreya। It's such a beautiful thing to have a friend in the form of your friend or your husband or your parents or your children where you can discuss all these things। It's such a blessing। So whole family should be adhyatmic, going towards the same। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही बना हुआ था। जैसे मैंने एक और वीडियो प्रोड्यूस किया था, Are you doing your duties well as a गृहस्थ? वो भी देखिए, अगर नहीं है तो मैं उसका लिंक डाल देती हूँ इस वीडियो के नीचे। That was also outlining the responsibility of a गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना होता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साधना। गृहस्थ जीवन सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सोसाइटी था इंडिया में, एंशियंट भारत में, बिकॉज गृहस्थ जीवन ही कमाता था,
वही सन्यासी को सपोर्ट करता था, वही वानप्रस्थ को सपोर्ट करता था और ब्रह्मचारी को भी सपोर्ट करता था. टुडे वी हैव बिकम स्पाइनलेस. वी आर नॉट सपोर्टिंग पीपल हु आर इन दैट पाथ, क्योंकि हम अपने में ही परेशान हैं. प्रॉब्लम वहीं आ रही है, हमारा अपना ही काम नहीं होता दिन भर का, माइंड इतना इन्वॉल्व है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है, तो कहाँ से हम किसी और को सपोर्ट करेंगे या फिर उसका इम्पोर्टेंस भी समझेंगे. सो गृहस्थ को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी. वी आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली, गृहस्थ आश्रम. In recent time, like whatever happened, like we don't have any real example to follow, because whatever example in front of us we have now, the gurus, which so-called gurus, I would say, they are famous or they reach to that level after their profession, as I think mentioned last time, after achieving their or professional growth or the family thing, and then they left everything and then moved on. And unfortunately, most of us, including us, a lot of those people will consider them an idol to follow. We want to follow in a spiritual path. There's nothing right and wrong, and running away from your responsibility is not what our rishis advocated. Never. Because कोई एक आप अच्छे चीज का बेस अधर्म पे नहीं कर सकते. And running away from your responsibility is अधर्म. सबको साथ में लेके चलना है. जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यही गृहस्थ जीवन में रह के अपनी साधना को शेप देना है. फिर एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि आई एम डन, बिकॉज नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू एट दैट टाइम. वो नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए. वानप्रस्थ शुड बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ अ साधक. व्हेन यू फील लाइक यू वांट टू टेक अ बैक सीट इन द गृहस्थ आश्रम एंड जस्ट फोकस मोर इंटरनली, तब तक आपकी वो साधना मैच्योर हो जाती है. अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, फिर ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती रिटायर होना है. वो नेचुरल आता है. नहीं तो लोग आजकल रिटायर नहीं होना चाहते. रिटायर का मेरा मन जॉब से नहीं है. रिटायर का मेरा मन है हैविंग फन गृहस्थ लाइफ का. वो मन नहीं भरता है, वो वैराग्य आता नहीं है. बट अगर आप साधना करते हैं, वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आप 60-70 साल के हो गए फिर भी आप गृहस्थ जीवन में है, तो आप अपने बच्चों को परेशान ही करेंगे ज़्यादातर, मेरे हिसाब से इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि हमको उनका तरीका पसंद नहीं आएगा. ऐसे ही होता है. और दे विल स्टार्ट disliking your talk talk, you know, आप जो बोलते हैं. It's better to take a back seat after a while. And again I'm saying it should be a natural progression if you have worked on your mind throughout your life. Okay? जब से होश संभाला है, जब से ये ज्ञान आपके सामने आया है या आपका इंटरेस्ट आया है इस तरफ, तब से भी अगर आप शुरू कर दें तो it's not that difficult. I think, Archana, when you're doing so much sadhana down the road, let's say, you're basically eventually trained to live in bliss in every moment. Then nothing will affect you. And I think that's when it's like non-attachment and everything. That is what the crux is. Yoga ratova, bhoga ratova, sanga ratova, sanga vihina. Yasya brahmani ramte chittam, nandati 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 teva. ये भज गोविंदम के लाइन्स हैं. योग रथोवा भोग रथोवा. योग में हो मतलब अकेले साधना कर रहे हो, भोग में हो फैमिली के साथ हो. संग रथोवा संग विहीना. संग में रहो, विदाउट संग रहो. यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम. चित्त जिसका ब्रह्म में लगा हुआ है. नंदति नंदति नंदति, मतलब उसके मन में आनंद ही आनंद है, खुशी रहता है हमेशा. वो कुछ भी हो जाए, वो स्टेज अचीव हो सकता है किसी के थ्रू भी. डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी आग लगी हुई है उस फ्रीडम को पाने के लिए, क्योंकि रियल फ्रीडम यही है. यही अमृत है. अमृत तत्व जिसको बोलते हैं यही है. आप उसको भगवान बोल लो, आत्मा बोल लो, अमृत बोल लो, अलग अलग नाम दे दो, जो नाम देना है दे दो. जब माइंड उसमें ड्वेल करने लगता है, that is what everybody wants. We want permanent peace and happiness. What else do you want? Then how can you not give this importance when everybody is looking for peace and happiness? But हम peace और happiness outside select कर रहे हैं, choose कर रहे हैं बाहर से, या relationship से, या shopping से, या मूवी देख के, वेकेशन पे जाके. यहाँ ढूंढना है वो परमानेंट. वो सब टाइम लिमिटेड होता है. सब में छोटी छोटी खुशी मिलती है, बट एवरीथिंग हैज़ अ टाइम लिमिटेड. कोई भी बाहर की वस्तु पे या व्यक्ति पे अगर आपको खुशी हो रही है, वो आपका टाइम लिमिटेड खुशी होती है. इट्स नॉट परमानेंट. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हो या फिर आप टेम्पररी हैप्पीनेस चाहते हो, एवरीबडी वांट्स परमानेंट हैप्पीनेस, इजंट इट? व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल्सो फॉर हैप्पीनेस. ये बात तो तय है कि हम जो कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी और एनी एनिमल टेंडेंसी ऑल्सो. आप किसी को हेल्प भी करते हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है. वो बेसिकली समझने वाली बात है. ये बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, इस पर मैं कभी और डिस्कस करूँगी. सो अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि ये कैंसर को अपने मन से निकाल दीजिए, माइंडसेट से. और आपके आसपास भी जितने लोग हैं उनसे भी डिस्कस करिए, उनके भी माइंड से कैंसर निकालिए. ये सब. Thank you so much, Archana, for sharing such a beautiful story and explaining it so well.
So my question is like we do try. जितना टाइम मिलता है, जब भी काम करते हुए भी कुछ नहीं चल रहा तो आई ट्राई टू डू माई सिमरन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वो जो आपने बोला इनर हैप्पीनेस फाइंड आउट करना, आई थिंक वी आर स्टिल वे बिहाइंड एंड मेरी तो वही सर्च चालू है. आई एम इन दैट. वो आता है, देखिए मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, बट वो आता है ओनली ज्ञान से। और ये जो हम कर रहे हैं ज्ञान अर्जित करना, वो पढ़ना, वो भी एक साधना का पार्ट है। अब बोलेंगे कि मेडिटेशन से आत्मज्ञान मिलता है, तो नहीं मिलता है, बट वो सहायक होता है। प्राणायाम से आत्मज्ञान मिलता है, नहीं मिलता है, बट वो सहायक होता है। योगा से आत्मज्ञान मिलता है, नहीं मिलता है, वो सहायक होता है। ये सब सेकेंडरी फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो हम ज्ञान की बात बोल रहे हैं, इट्स लाइक अ प्रकाश, लाइट है। लाइट जलाने पे जैसे वो सिर्फ प्रकाशित करता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको समझ में आने लगता है कि वेयर आई हैव टू फोकस। तो अभी मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे उस कमरे का, अगर वहां पे झाड़ू भी है तो आपको दिखेगा, आपका गोल्डन नेकलेस है तो वो भी दिखेगा, कचरा है तो भी दिखेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये हो जाएगा, वो सिर्फ दिखाता है आपको कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। अब आप पे डिपेंड करता है, वो झाड़ू लेके कचरा साफ करना चाहते हैं या वैसे ही रखने देना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? वो ज्ञान का प्रकाश सिर्फ प्रकाशित करता है कि व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ एंड व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। हो सकता है आपके जीवन में बहुत कचरा है, आपको साफ करना है, नहीं करना है, और यू वांट टू लिव विथ इट, वो भी चॉइस। वो आपको बोलता नहीं है, वो ज्ञान आपको बोलता नहीं है कि कचरा साफ करो, वो आप पे चॉइस छोड़ता है कि व्हाट डू आई वांट टू डू। तो प्रकाश जैसा है। तो गंदगी जहाँ दिखने लगती है ना अपने मन के अंदर ही या आसपास में, तो जैसे जितना लाइट जलाएंगे ना उतना आप सफाई कर पाएंगे। दैट्स ऑल इट इज। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना उस बात में आगे बढ़ेंगे, उतना आपको लगेगा। मैंने जैसे पिछले सत्संग में बोला था कि द ओनली थिंग यू शुड बी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स इज योर ओन विकार ऑफ योर माइंड, योर ओन प्रॉब्लम्स, जस्ट योर ओन माइंड। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक माइंड स्टार्ट्स बिकमिंग वाइट, लाइक अ वाइट चादर। उसमें थोड़ा भी डॉट लगेगा तो आपको लगेगा ना मेरी चादर थोड़ी ब्लैक हो गई, तो मुझे नहीं करना है ब्लैक। तो अध्यात्म का ज्ञान यही आपको बताता है, ठीक है, आपको बस अवेयरनेस डेवलप करता है। एंड व्हेन यू वर्क फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ अवेयरनेस, यू आर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ या साधना करोगे तो आपका मटेरियल एस्पेक्ट बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाज एट हाइट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ वाज वेरी हाई। और ये भी एक इसमें ही लिखा हुआ है बुक में ही, a bird can only fly with two wings, one a wing of spiritual success and a wing of material success. Both has to go hand in hand. तो जितना आप spiritually successful होगे उतना materially भी वो आप attract करोगे, everything ऐश्वर्य attract करोगे, everything you'll attract। चिंता नहीं रहती कुछ, जो आपको चला रहा है उसकी चिंता हो जाती है आपको कैसे चलाना है। एंड दिस इज नथिंग रिलेटेड टू अंधविश्वास, ओके, लेट मी टेल यू, योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। तो कोई भी आपको बुद्धू बनाने का ट्राई करेगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। यू स्टार्ट नोइंग द माइंड्स ऑफ पीपल कि कहाँ मुझे टाइम स्पेंड करना है, कहाँ से विड्रॉ करना है मुझे, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। तो समझ में आने लगता है धीरे धीरे, यू बिकम वेरी स्मार्ट एक्चुअली। तो क्यों नहीं बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, डोंट यू वांट योर किड्स टू बी स्मार्ट, रियली स्मार्ट, एंड हाउ टू नेविगेट लाइफ सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर आ गया है ना सोसाइटी में, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। वही धीरे धीरे करके हटना है। मेन बात है एक सिंपल चीज का ध्यान रखना है, अवेयरनेस। वेयर इज योर माइंड? इज योर माइंड थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स और इज इट विद इन? वेयर इज द फोकस? विद इन का मतलब होता है इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी योर ब्रेथ, इट कैन बी योर हैंड्स, ब्रिंग योर माइंड टू योर हैंडिंग एवरी टाइम। कहाँ सोच रहा है आपका माइंड, किसके बारे में सोच रहा है? और बच्चों की चिंता विंता ही ना सब बेकार बात होती है। ये बात आप समझ लीजिए कि आप बच्चों को कितना भी कुछ भी कर लो, उनका प्रारब्ध कर्म है, उनको दे हैव टू गो थ्रू देयर साइकिल्स ऑफ सुख एंड दुख, इनएविटेबल है वो। यू आर जस्ट अ प्रोवाइडर एंड अ प्रोटेक्टर, जहाँ तक आपका सामर्थ्य है करो, बाकी उनका अपना भाग्य है, उनका अपना कर्म फल है जो आ रहा है उनके लाइफ में। बट वेन यू आर स्टेबल एंड देन टेक केयर ऑफ योर किड्स विद दैट स्टेबिलिटी, दे विल ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर इन डीलिंग विद दैट कर्म फल दैट्स कमिंग इन देयर लाइफ। तो मेरे पापा बोलते थे चिंता और चिता में मात्र बिंदु का फर्क होता है, तो वो बिंदु को यहाँ लगा दो बिंदी बना दो। थैंक यू। Thank you, Archana. thank you so much. वेलकम। Thank you, Archana. It was very deep, very beautiful. Thank you. Thank you, Archana. It was very well explained. Thanks a lot. मैं कह रहा हूँ भगवा वस्त्र खरीदने मत निकल जाना आप। भगवा मेरे मन में है।
No, thank you. Wonderful. Just want to just mention one thing that I've also started doing, mantra chanting. I have my favorite shloka, Sahasranamam, Vishnu Sahasranamam. I've been trying to, chant it every day while cooking. That's making me focus so much into cooking. I'm just getting it done by the end of the shloka. Overall, I feel so positive. I don't feel lonely. It's a big change. खाना भी बहुत टेस्टी बनेगा फिर. So coming back to the story, the Rishi Yagyavak was very happy that his wife was interested in knowing the source of eternal happiness. That's how he starts talking to her, and a very beautiful story. All right, good night, everybody.